columnar cipher. So in case of row columnar cipher, what we are doing, based on the given key, we are encoding a PT row wise, and later on for reading CT or for converting that respective PT in a CT, we are simply reading the ciphertext on the basis of a given key value column wise. Okay. So the extension of this row column that we have seen is repeated row column. So under repeated row column cipher, we are using row column cipher either twice or thrice. If it's needed, we are using the same key, or we are changing the key as per the need or as per the requirement. So the use of row column cipher for twice or thrice or n times is nothing but your repeated row column cipher. So I have drawn one basic block diagram related to repeated row column cipher, in which I have shown some PT. Then we have given that respective PT to your row column cipher. Simply I am writing as a row column. We are providing a key information. So just take an example. I am providing K1 as a key for first row column cipher. It's going to generate a CT. So we may term CT1 as an intermediate CT produced by first row column method or first row column cipher. Later on, we are providing this CT1 as an input to another instance of row column cipher. Again, we are feeding some key. So it may be possible that this K1 is common for both the instances, or it may be possible we are using different keys. K1 for first row column cipher, K2 for second row column cipher. Then finally we will get CT2, or we may term it as a final CT. So for representing this repeated row column cipher, if you have to write the value of CT1, in that case you are going to write it as an encryption by using K1 and CT. Again, if you are interested to write the value of CT2, so CT2 stands for, you are going to write it as an encryption by using K2, and after that you are inputting CT1 as a plain text to your second row column cipher. In the sense we will write it as a CT1. या इसी को हम फर्दर जो है राइट कर सकते हैं इस मैंने में encryption by using K2, then again encryption by using K1. After that we'll write it as a CT. तो CT2 जो है आपका फाइनल CT है, इट्स नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ योर सेकंड रो कॉलम साइफर. तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, सेंटर एंड पे अगर आप रिपीटेड रो कॉलम साइफर यूज करते हैं तो उस केस में सेंडर यूजर जो है प्लेन टेक्स्ट को जो है ट्वाइस दो इंस्टेंसेस या तीन इंस्टेंसेस के थ्रू सेम की या डिफरेंट कीज का यूटिलाइजेशन करके रो कॉलम साइफर के थ्रू प्रोसेस करता है और फाइनली जो है रिजल्ट जो है प्रोड्यूस करता है. तो दो या तीन इंस्टेंसेस यूज करने का बेनिफिट क्या होगा? जैसे सिंगल आपका रो कॉलम साइफर यूज करते हैं तो उस केस में जो सीटी प्रोड्यूस होगा वो हो सकता है कि उतना जो है स्क्रैम्बल्ड ना हो. इट मे बी पॉसिबल दैट इट्स नॉट हैविंग एवलांच इफेक्ट. एक टर्म आएगा, अभी हम लोग जो है ब्लॉक साइफर डिजाइन प्रिंसिपल्स देखेंगे, तो वो प्रिंसिपल टर्म करता है कि आप इनपुट में जो भी वैल्यू दें, प्लेन टेक्स्ट दें, वो इतना जो है स्क्रैम्बल्ड हो जिससे उसमें जो है आउटपुट में जो है एवलांच इफेक्ट दिखे, आउटपुट में बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखे, जिससे यूजर, इंट्रूडर या हैकर जो है उस रिस्पेक्टिव साइफर टेक्स्ट को, उस रिस्पेक्टिव स्क्रैम्बल्ड मैसेज को जो है इजियर वे में डिकोड ना कर पाए. ठीक है, तो हमारा इंटेंशन यहाँ पे है कि ये जो पर्टिकुलर आपका आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, इस इनपुट और आउटपुट में बहुत ज्यादा वेरिएशन होना चाहिए, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर शफलिंग होनी चाहिए, जिससे कोई स्पेसिफिक इंट्रूडर या हैकर जब आप अपने साइफर टेक्स्ट को डेस्टिनेशन को डाइवर्ट करते हैं तो उसे डिकोड ना कर पाए, उसे डिसाइफर ना कर पाए. ठीक है, यहाँ पे हमने जो है राइट किया C2 का वैल्यू.
इसे जो है हम जो है मान सकते हैं CT2 को हम लोगों ने डाइवर्ट किया डेस्टिनेशन एंड से। डेस्टिनेशन एंड जो है उस रिस्पेक्टिव CT2 को जो डिसाइफर करना चाहता है, तो CT2 को डिसाइफर करना है इन द सेंस तो क्या करेगा, ही इज गेटिंग CT2। अब इस रिस्पेक्टिव CT2 को जो है डिकोड करना है, तो अगेन जो है हम क्या करेंगे, डेस्टिनेशन एंड से रो कॉलम मैकेनिज्म यूज करेंगे, बट रो कॉलम मैकेनिज्म हम यूज कर रहे हैं डिक्रिप्शन पर्पस के लिए। तो डिक्रिप्शन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो पहला की कौन सा ऑपरेट होगा, जैसे हम मान चलते हैं सेंडर एंड पे हमने जो है 2 कीज यूज किए, हमने जो है रो कॉलम साइफर ट्वाइस यूज किया। इट में भी पॉसिबल यू हैव डन द यूटिलाइजेशन ऑफ रो कॉलम साइफर ट्वाइस और एन टाइम्स, कि हम मान चल रहे हैं 2 बार हमने रो कॉलम साइफर यूज किया। फर्स्ट रो कॉलम के लिए K1 यूज किया, सेकंड रो कॉलम के लिए K2 यूज किया। 2 डिफरेंट कीज हमने यूज किए, CT प्रोड्यूस किया। CT जो है डेस्टिनेशन एंड को हमने डाइवर्ट किया, डेस्टिनेशन एंड को हमने स्पेसिफाई किया गया। ये जो CT है रिपीटेड रो कॉलम साइफर का यूज करके बना हुआ है। इस रिस्पेक्टिव CT को आपको जो है डिकोड करना है, तो उसके लिए जो की इंफॉर्मेशन है वो K1 एंड K2 है। So your destination is having key details, your destination is having cipher text, your destination is having the details about the cipher used for preparing that respective CT. तो CT को डिकोड करने के लिए, डिसाइफर करने के लिए डेस्टिनेशन यूजर जो है रो कॉलम साइफर यूज करेगा। रो कॉलम साइफर यूज करने के बाद अब यहाँ पे जो है कौन सा की पहले ऑपरेट होगा, वेदर K1 और K2। If someone is listening, just let me know which key we are using, whether we are using K1 or K2 at the time of decipherment. K2 first and then K1. हाँ, पहले जो है आपका K2 यूज होगा। तो K2 इन द सेंस इसलिए यूज होगा क्योंकि हम एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ CT2 है, रो कॉलम को जो है हम दे रहे हैं, रादर देन कैरिंग आउट एनक्रिप्शन वी आर कैरिंग आउट डिक्रिप्शन, डिसाइफरमेंट हम कर रहे हैं, डिसाइफर कर रहे हैं। पहला की कौन सा ऑपरेट होगा, K2। तो यहाँ पे राइट किया गया K2। यहाँ पे जो है डिक्रिप्शन प्रोसेस हो रहा है। इधर क्या हुआ, सेंडर एंड पे जो आपका एनक्रिप्शन प्रोसेस हुआ, एनक्रिप्शन प्रोसेस हुआ बाय यूजिंग रो कॉलम साइफर। बट एट डेस्टिनेशन एंड फ्रॉम रिसीव्ड CT यू आर ट्राइंग टू डिसाइफर योर प्लेन टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट डिसाइफर करना है, पहले CT2 को जो है रो कॉलम के एक इंस्टेंस से प्रोसेस किए, उस पर जो है आपने जो है की ऑपरेट किया, वो रहा K2। ठीक है, K2 से जो है मतलब हम यहाँ पे मान चलते हैं कि हमको जो है एक रिजल्ट मिल रहा है, एंड वी आर टर्मिंग दैट रिजल्ट एज एन CT1। ठीक है, इंटरमीडिएट रिजल्ट मिल रहा है। इस रिस्पेक्टिव इंटरमीडिएट रिजल्ट को हम फिर से क्या करेंगे, अगेन विल प्रोवाइड इट टू योर रो कॉलम साइफर। तो रो कॉलम साइफर यहाँ पे डेफिनेट है, आपका डिक्रिप्शन प्रोसेस कैरी कर रहा है, एंड डेफिनेटली फॉर कैरिंग आउट डिक्रिप्शन प्रोसेस अगेन यू हैव टू यूटिलाइज द प्रोवाइडेड की फ्रॉम सेंडर एंड। तो K2 आपने यूज कर लिया, सेकंड की आपका जो है K1। अब इस K1 को यूज करने के बाद में फर्दर आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट योर प्लेन टेक्स्ट। तो इससे जो है क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि रो कॉलम साइफर क्या है, रिपीटेड रो कॉलम साइफर क्या है, इसका वर्किंग क्या है। तो उस केस में आप जो है ब्लॉक डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर सकते हैं रो कॉलम साइफर क्या है। तो इन केस ऑफ रो कॉलम हम सिंपली जो है की के बेसिस पे प्रोवाइडेड प्लेन टेक्स्ट को जो है रो वाइज राइट करते हैं, और की में दिए हुए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है साइफर टेक्स्ट को कॉलम वाइज रीड कर लेते हैं। अब यहाँ डेस्टिनेशन एंड पे जैसे CT को जो है हमें रिप्रेजेंट करना है, मतलब CT1 जो CT2 है, अब CT2 को जो डिकोड किए तो यहाँ हम टर्म कर लेते हैं इट्स नथिंग बट CT1 फॉर अस। और ये जो है आपका फाइनल CT है, फाइनल CT आप काम करें या CT2 जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उससे आप राइट कर दें। तो इसे अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या राइट करेंगे, हमें किसका वैल्यू राइट करना है, प्लेन टेक्स्ट का। तो CT1 का अगर हमें वैल्यू राइट करना है तो हम क्या राइट करेंगे, विल राइट इट एज एन डिक्रिप्शन बाय यूजिंग K2। मतलब यहाँ पे डिक्रिप्शन प्रोसेस हो रहा है, कौन से पर्टिकुलर लॉजिक का यूज करके, रो कॉलम साइफर यूज करके। फर्स्ट की हम कौन सा ऑपरेट करेंगे, K2, और इनपुट क्या दिया जाएगा इसको, CT2। ठीक है, तो CT2 जो है दे करके हम जो है PT1 प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जैसे हम देखते हैं फाइनल PT या PT2 जो राइट किए हैं, उसे अगर हमें राइट करना है तो हम राइट करेंगे डिक्रिप्शन बाय यूजिंग K1। और ये जो आपका PT1 है, इस PT1 को या पर्टिकुलरली स्क्रैम्बल डेटा को, जो इंटरमीडिएट आपका जो है PT जनरेट हुआ है,
उस रिस्पेक्टिव इंटरमीडिएट पीटी को एज ए इनपुट हम देंगे और वहां पे जो है डिक्रिप्शन आपका कैरी होगा बाय यूजिंग योर की एज ए K1 और यहाँ हम राइट करेंगे PT1। इसी को आगे हम राइट कर सकते हैं decryption by using K1, then again decryption by using K2, of that your PT1। करेक्ट है? तो ऐसा आप राइट कर सकते हैं या आप इस मैनर में जो है राइट कर सकते हैं DK1 2 आप राइट कर सकते हैं और उसके अंदर में जो है PT1 जो है लिख सकते हैं। तो होप the things are clear to all of you related to row column or repeated row column cipher. Now we'll see the examples which are appeared in your university examination. तो सिंपल एग्जाम्पल हैं, कई बार जो है 2 नंबर के लिए आते हैं, कई बार फुल मार्क्स के लिए आते हैं। तो फुल मार्क्स का आता है उस केस में आपको जो है पूरा प्रोसेस राइट करना रहेगा। तो जस्ट नोट डाउन वन एग्जाम्पल। सो प्रोवाइडेड PT इज सैन फाउंड्री, the given key is secret, so in exam you will get prepare a ciphertext based on the given plain text and key information by using row column cipher। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो स्पेसिफिक की है की में या तो आपको जो सीक्वेंस दिया रहेगा, सीक्वेंस का यूटिलाइजेशन करके जो है पर्टिकुलरली आप जो आपका प्लेन टेक्स्ट है उसको रो वाइज राइट कर देंगे, की में दिए हुए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उसको जो है रीड कर लेंगे। तब यहाँ हमारे पास न्यूमरल वैल्यूज नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, सीक्वेंस से रिलेटेड डिटेल्स जो है अल्फाबेट्स के फॉर्मेट में है। पहला टास्क हमारा ये है कि हमें जो है इनको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो आप देख लीजिए ए से स्टार्ट कीजिए, ए नहीं है, बी नहीं है, सी है तो यहाँ पे उसके नीचे राइट किए 1, इसके बाद डी नहीं है, ई नहीं है, तो अब यहाँ पे ई के जो है 2 ऑकरेंसेस हैं। तो फर्स्ट टाइम जो है ई ऑकर हो रहा है उसको नेक्स्ट नंबर दिए, सेकंड टाइम जो आ रहा है वो नेक्स्ट नंबर दिए, फिर इसके बाद आर आएगा, देन एस है और की जो है सबसे एंड में है। ये आपका जो है की स्पेसिफिक जो है डिटेल हो गया या सीक्वेंस हो गया। 5 2 1 4 3 6 ये आपके जो है की डिटेल्स हो गए। तो अब इस की डिटेल का यूज करके की को हम यहाँ पे राइट करेंगे 5 2 1 4 3 एंड 6। ठीक है, की राइट करेंगे। की राइट करने के बाद में अब हमको क्या करना है कि जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है, गिवन प्लेन टेक्स्ट, उस रिस्पेक्टिव प्लेन टेक्स्ट को जो है रो वाइज राइट कर देंगे। तो रो वाइज राइट करना अब यहाँ पे हमने यूज किया SAM FOUNDRY। तो ये आपका जो है टेक्स्ट हो गया। मतलब टोटल जो है 6 आपके कॉलम्स यहाँ पे हैं। उन कॉलम के जो है सीक्वेंसेस को आपने जो है गिवन की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो है फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के बाद में आपने जो है कॉलम्स के नंबर दिखे सीक्रेट की इंफॉर्मेशन पे या की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, उसके बाद रो वाइज जो है गिवन प्लेन टेक्स्ट को आपने राइट कर दिया। राइट करने के बाद अब यहाँ पे जो है जैसे जो कुछ वैकेंट स्पेसेस है तो इस पे जो है एक स्पेसिफिक अल्फाबेट को जो है आपका राइट कर दीजिए। जनरली जो है X यूज किया जाता है या Z यूज करते हैं। कई सारे जो है बुक्स आप देखेंगे जहाँ पे ऑथर्स ने जो है एक टर्मिनेटर यूज किया है, टर्मिनेटर अल्फाबेट, जिसे जो है वो लोग यूज करते हैं एज ए J। तो J इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे जो है आपका टेक्स्ट जो है प्लेन टेक्स्ट एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद कोई स्पेसिफिक जो है टेक्स्ट नहीं आ रहा है, तो वहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। तो आप उसे यूज करना चाहें वो यूज करें, X यूज कर सकते हैं या Z यूज कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है जिस रिस्पेक्टिव अल्फाबेट का जो है लैंग्वेज रेगुलरिटी कम है, जो कम ऑकर होता है, उसी रिस्पेक्टिव अल्फाबेट को आप यूज करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टास्क है कि हमें जो है सीटी रीड कर लेना है। तो सीटी रीड करने का तरीका यह है कि आप जो है कॉलम वाइज सीटी रीड करेंगे। पहला कॉलम है आपका NR,
सेकेंड कॉलम है AD, थर्ड कॉलम आप देख रहे हैं O है, X है इन द सेंस इसको आपको फर्दर डिस्कार्ड कर देना है, मतलब उससे जो हम कंसीडर नहीं करेंगे एज ए अल्फाबेट। देन फोर्थ में आएंगे FY, फिफ्थ है आपका SN, सिक्स्थ है UN, ठीक है। ये जो है आपका साइफर टेक्स्ट हुआ। इस साइफर टेक्स्ट को आप रीड कर लेंगे, साइफर टेक्स्ट को जो है डेस्टिनेशन को जो फॉरवर्ड कर देंगे। डेस्टिनेशन पे जाने के बाद में अगर इस रिस्पेक्टिव साइफर टेक्स्ट को डेस्टिनेशन यूजर को डिसाइफर करना है तो क्या करेगा, बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड की इंफॉर्मेशन, जैसे सीक्रेट की जो है उसको भी जो है मिलती है, डेस्टिनेशन को भी सीक्रेट के मिलने के बाद वो जो है उसके न्यूमेरिक वैल्यूज को जो फाइंड आउट करेगा, सीक्वेंस को जो बनाएगा, और डेस्टिनेशन एंड पे काम क्या किया जाएगा, ये जो सीटी मिल रहा है इस रिस्पेक्टिव सीटी को डेस्टिनेशन यूजर जो है कॉलम वाइज राइट करेगा, एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसेस। सेंडर एंड पे हम क्या कर रहे हैं, ऑन सेंडर एंड वी आर राइटिंग आवर प्लेन टेक्स्ट रो वाइज एंड रीडिंग द सीटी कॉलम वाइज, बट एट डेस्टिनेशन एंड यू आर प्रोवाइडिंग सीटी टू योर डेस्टिनेशन यूजर। डेस्टिनेशन यूजर जैसी सीटी रिसीव करता है तो उस कंसेंट सीटी को जो है कॉलम वाइज जो है डेस्टिनेशन यूजर राइट करेगा, और फर्दर जो है प्लेन टेक्स्ट को जो है रो वाइज रीड कर लेगा। क्लियर है? तो ये जो है आपका सिंपल सा सीटी है जो कि आपने प्रिपेयर किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, टाइम बाउंड्री एंड सीक्रेट, और इस कंसेंट सीटी को आप जो है डेस्टिनेशन एंड से जो है फॉरवर्ड कर देंगे। तो हो सकता है आपको जो पूछा जाए कि भैया ये गिवन सीटी है उसको पीटी में कन्वर्ट करो, पीटी है तो सीटी में कन्वर्ट करो। अगर सीटी जो है गिवन है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन गिवन है, साइफर का जो डिटेल आपको मालूम है, रो कॉलम साइफर है, तो उस केस में सीटी को पीटी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, गिवन सीटी को कॉलम वाइज जो है आपकी की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डेंस कॉलम वाइज उसे राइट कर देंगे और प्लेन टेक्स्ट को रो वाइज रीड कर लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। आप लोग प्रिपेयर कीजिए, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, एक दो बार बना के देखेंगे, बहुत इजी है। इस तरह से जो बोनस नंबर्स आपको जो मिलते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं तो एक भी नंबर कटता नहीं है। सो सेकेंड इज given plain text is classified hope the content written on board is visible to all of you। विजिबिलिटी सभी को है? यस सर। हाँ या ना? ठीक है। तो प्लेन टेक्स्ट जो है क्लासिफाइड है, की इंफॉर्मेशन जो है वो है गेम। इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं, इसको आपको जो है अभी बना के देखना है। ये जो है गिवन की है, इस रिस्पेक्टिव जो है डिटेल के बेसिस पे अब आपको क्या करना है, क्लासिफाइड का जो है एक साइफर टेक्स्ट जो है प्रिपेयर करना है। यहाँ आप राइट कर लीजिए, बना के देखिए सभी। तो जो की इंफॉर्मेशन में आपके पास में डिटेल्स हैं उनको जो आपने राइट किया, सिंपली अब आप क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ए का प्रेजेंस है तो उसके नीचे राइट कर दिए 1, बी सी डी, ई यहाँ पे है, जी आ गया, फिर यहाँ पे एम है, और आखिरी में आपका एस आ गया। तो आपने जो है नंबर्स में जो है उसको कन्वर्ट कर लिया सीक्वेंस को 1 3 1 4 2 5, ये जो है आपका की इंफॉर्मेशन हो गया। अब इस रिस्पेक्टिव की इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करने के बाद में क्लासिफाइड को आप एनकोड कर दीजिए। यहाँ पे आप राइट कर रहे हैं, ये हमारा मतलब एक तरह से सीक्वेंस हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ हमने राइट कर दिया। सीटी अब हमें रीड करना है, तो सीटी रीड करने का तरीका हमने आपको बताया हुआ है। अब हम जो है कॉलम वाइज जाएंगे, तो फर्स्ट कॉलम को रीड करेंगे एल एफ, सेकेंड कॉलम है एस ई, थर्ड कॉलम आपका है सी आई, फोर्थ है ए आई, फिफ्थ है एस डी। ये हुआ आपका साइफर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन। इस तरह के 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एकदम ईजी रहते हैं। ये सब जो है एकदम क्लासिकल क्रिप्टोग्राफिक एग्जाम्पल हैं, ओल्ड टाइम्स, मतलब बहुत पुराने जो है एग्जाम्पल्स हैं, हजारों साल पहले वाले जो है लोग जो है इन सब चीज़ों को यूज करते थे और अपने जो है मैसेजेस को एनकोड करके जो है फॉरवर्ड करते थे।
सॉरी एनकोड करके जो है फॉरवर्ड करते थे किसी स्पेसिफिक जो है डेस्टिनेशन यूजर को, तो उस समय ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि जो है किसी जो मीडियम के थ्रू, किसी चैनल के थ्रू हम फॉरवर्ड करें। डेडिकेटेड पर्सन जो इन सब डिटेल्स को जो है लेके जाता था और डेफिनेट वो की इंफॉर्मेशन वगैरह भी जो है प्रोवाइड करके जो है देता था, और जो उस समय के डिकोडर्स हुआ करते थे रिस्पेक्टिव मैसेज को डिकोड करके फिर रीड करते थे प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। कई बार जो है एग्जाम्पल आया है, इसको जो है एक बार बना करके देख लेंगे। इसको रो कॉलम और रिपीटेड रो कॉलम दोनों के लिए हम बनाएंगे। फर्स्ट टाइम हम लोग जो है प्रिपेयर करते हैं सिंपल रो कॉलम के लिए, और इसमें जो है की जो है गिवन है, की इंफॉर्मेशन है 24135। तो 24135 या अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स क्या इंडिकेट करते हैं कि आपके स्पेसिफिक जो रो कॉलम मैकेनिज्म है उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं 24135, आप देख रहे हैं टोटल जो है यहाँ पे 5 कॉलम्स होंगे। अब इसमें जो है आपका प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है PT, तो इसका अटैक फ्रॉम ईस्ट एट डॉन, ठीक है। तो ये जो है आपका प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है। इस प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को जो आपको एनकोड करना है, एनकोड करके साइफर टेक्स्ट जो है प्रोड्यूस करना है। ये पहला जो है सिंपल इंफॉर्मेशन यहाँ है, इसी को जो है फर्दर हम लोग एक्सटेंड करेंगे। तो अब डायरेक्टली जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसको यहाँ पे राइट कर लीजिए, और इस रिस्पेक्टिव PT को आप जो है यहाँ पे राइट कर लीजिए। ठीक है। अब ये जो आपका डिटेल है इसके बेसिस पे CT को रीड कर लीजिए। तो CT को रीड करने वाला पहला कॉलम आपने रीड किया TRS से, सेकंड जो है रीड किए AKET, थर्ड रीड किए AOTW, फोर्थ TFKD, फिफ्थ है आपका CMAN। ये CT हुआ, इसको आपने रीड किया। अब सेम एग्जाम्पल रहेगा, उस रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल का यूज करके आप जो है रिपीटेड रो कॉलम साइफर को बना करके देखेंगे। इन द सेंस जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो है इस की के बेसिस पे प्लेन टेक्स्ट को एनकोड किया, एनकोड करने के बाद CT प्रोड्यूस किया। जैसे आप जो है काम करेंगे CT1, इस CT1 को जो है सेकेंड जो है रो कॉलम इंस्टेंस को दे देंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडेड की वैल्यू, और उसको जो फिर से एनक्रिप्ट या एनकोड करेंगे। तो हो गया, इसको राइट कर लिए हैं, एकदम सिंपल सा, इसमें कुछ है नहीं। PT जो हमारा सेम रहेगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख रहे हैं रिपीटेड रो कॉलम साइफर का। तो PT इंफॉर्मेशन जो है आपका यही है, अटैक फ्रॉम ईस्ट एट डॉन, और जो की इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा सा जो है चेंज हो रहा है, एग्जाम में आया हुआ है, उसी को हम जो है राइट करते हैं। अभी हम लोगों ने 24153 यूज किया था कि 24 की क्या यूज किए थे इसके पहले? 24135 24135 यूज किए थे। तो 24153 अब यूज करेंगे, बट 24153 जो है ट्वाइस यूज करना है आपको, ठीक है। ट्वाइस यूज करना है इन द सेंस, अब यहाँ इस PT को जो है आप रो कॉलम साइफर के थ्रू जो है प्रोसेस कर रहे हैं। K1 जो है आपका यही है 24153, CT1 रिजल्ट होगा। इस CT1 को जो है फिर आप जो है रो कॉलम साइफर के थ्रू प्रोसेस करेंगे। सेकेंड टाइम सिमिलर की यूज करेंगे, सेम की 24153, ठीक है। की जो है कॉमन है, रो कॉलम साइफर जो है सेम है, और फाइनली जो यहाँ पे आपका CT आ रहा है उसको आप हमें बताएं। आई एम एक्सपेक्टिंग द वैल्यू ऑफ CT2 फ्रॉम ऑल ऑफ यू, so just get it done within 1 or 2 minutes.
देन वी विल स्टार्ट विथ अनदर एग्जांपल। जिसका भी हो जाता है हमें रिस्पॉन्स करेंगे फास्टर वे में। सिंपल सा है, की जो है गिवन है, की का सीक्वेंस 24153 है। प्लेन टेक्स्ट को जो है रो वाइज राइट कर लीजिए और कॉलम वाइज रीड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 ऐसा जो है रीड कर लीजिए। जो CT आया है उसको आप काम कर रहे हैं CT1। फिर से जो है CT1 को क्या करेंगे, रो वाइज राइट करेंगे, रो वाइज राइट करेंगे, उसके बाद कॉलम वाइज यहाँ पे जो है RC2 के केस में रीड कर लेंगे। साइफर टेक्स्ट आपका जनरेट होगा जिसको हम काम करेंगे CT2। तो रो कॉलम साइफर ही 2 बार आपका यूज हो रहा है। हो सकता है कि जो है दोनों बार सेम रहे, हो सकता है जो है कि आपके डिफरेंट रहें। डिफरेंट रहते हैं तो भी चलेगा, सेम रहता है तो भी चलेगा। डिफरेंट रहेगा इन द सेंस डेफिनेट है, मतलब जो क्वालिटी साइफर टेक्स्ट रहेगा आपका CT2 वो जो है कंपैरेटिवली जो है मतलब सेम चीज के कंपैरिजन में जो है बेटर रहेगा। ये साइफर टेक्स्ट जो आपका बेटर आप जो है स्क्रैम्बल करके जो प्रोड्यूस करेंगे। सो एनीवन जस्ट लेट मी नो द वैल्यू ऑफ CT1 जिसका भी हो गया है। देखिए आप लोग रिस्पॉन्स करते रहिए, नहीं तो दिक्कत ये होती है कि आप कहते हैं कि हम प्रेजेंट हैं सर, अटेंडेंस नहीं लगा और ये सब चीज़ें हैं। कल जो है कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी रहे हैं कि जब हम लोग सेशन जो है कंप्लीट कर दिए, लॉग आउट कर दिए, उसके बाद जो है ज्वाइन किए हैं 11:20 11:15 के अराउंड और कह रहे हैं कि अटेंडेंस नहीं मिला है सर। तो सिस्टम जनरेटेड लॉग्स हैं। आज आपके लिए मैंने जो एक फॉर्म भी जो प्रिपेयर कर दिया है, तो उस फॉर्म में जो अटेंडेंस आया है उसी को जो है हम काउंट करेंगे। सो इफ समवन हैज कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ CT1 जस्ट लेट मी नो। किसी ने बनाया? ये खाली आइडल बैठने से काम नहीं चलेगा कि सर कुछ तो भी जो है पढ़ा रहे हैं और हम वहाँ पे बैठ करके जो है मूवी जैसा जो है देख रहे हैं, तो उससे काम नहीं बनना है। थोड़ा सा जो है आपका पेन और पेपर लीजिए, बना करके देखिए क्या वैल्यू आ रहा है उसको हमें बताइए। ठीक है, तो फिलहाल जो है रोल नंबर 11 अगर हैं, रोल नंबर 21 है, रोल नंबर 31 है, ये रोल नंबर जो है हमको रिस्पॉन्स करेंगे। रोल नंबर 1 11 21 31 41 ये सभी जो रोल नंबर्स अगर हैं अवेलेबल तो हमको रिस्पॉन्स करें, अदरवाइज आपका अटेंडेंस माइनस किया जाएगा। आप अटेंटिव नहीं है ऐसा मान के चला जाएगा। कोई है? हेलो। या यस प्लीज टेल मी योर रोल नंबर एंड नेम। सर 41 हिमांशी। हाँ हिमांशी बोलिए। सर फाइनल CT2 का आंसर बता रही हूँ। हाँ ठीक है बताइए। नहीं फाइनल बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। STTO STTO PKAD PKAD AMAW AMAW RENA। नो सर एक बार ACFT CFT। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए और वेरिफिकेशन भी जो आप अपने एंड पे कर सकते हैं। अब इस रिस्पेक्टिव जो है CT को आप कंसीडर कीजिए कि ये साइफर टेक्स्ट आपका गिवन है। अभी क्या है, हमने यहाँ बताया भैया प्लेन टेक्स्ट ये है, इस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो साइफर टेक्स्ट में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब इसे वेरीफाई करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। इस साइफर टेक्स्ट को अगर आप डिसाइफर करेंगे, रिवर्स प्रोसेस कैरी करेंगे, तो उस केस में आपको क्या होगा, वो प्लेन टेक्स्ट जो मिल जाएगा। तो डिसाइफर प्रोसेस आप कैरी कर लीजिए पहले जो है, मतलब रिस्पेक्टिव जो है साइफर टेक्स्ट को जो फाइनली आपको मिला है उसको कॉलम वाइज राइट कर लीजिए, रो वाइज रीड कर लीजिए। CT1 या PT1 आपको मिलेगा, फिर PT1 को रो कॉलम को दीजिए। रो कॉलम को देते समय मतलब आप डिसाइफर कर रहे हैं, कॉलम वाइज राइट करेंगे, रो वाइज रीड करेंगे, आपको जो है प्लेन टेक्स्ट जो है रिजल्ट कर जाएगा। तो आप एक बार जो है ये बनाने के बाद में जो CT प्रोड्यूस हो रहा है उस CT को जो है वेरीफाई कर लीजिए कि रिवर्स प्रोसेस कैरी करने से CT PT में कन्वर्ट होता है या नहीं। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर हो गया है बना करके देख लीजिए, कोई ज़्यादा इसमें जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एग्जाम में पूछे जाने के बाद में इनके एक भी नंबर नहीं कटते हैं, फुल नंबर्स मिलते हैं सबको। बस एक बार आपको जो इसे बना के देखना है। अब यहाँ पे जैसे मैंने K1 जो है कॉमन रखा, हो सकता है कि दो कीज आपको जो प्रोवाइडेड हो, K1 है और K2 है, ठीक है। तो K1 K2 है या K2 है, इन द सेंस अब यहाँ पे हम राइट करेंगे 1 3 5 एंड 2 4। तो फर्स्ट की है 24153, सेकेंड की है 13524। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो है K1 के बेसिस पे जो आपका कंटेंट को जो कॉलम वाइज रीड करेंगे, CT प्रोड्यूस होगा, CT को जो है फिर आपका सेकेंड रो साइफर के इंस्टेंस को देंगे, और रादर देन यूजिंग सेम की वी आर यूजिंग K2। तो K2 का जो है सीक्वेंस है 13524। 13524 के अकॉर्डिंग जो है जो भी इंटरमीडिएट CT आपको मिला है उसको फिर से आप एनकोड करेंगे सेकेंड इंस्टेंस से, और फाइनल जो है आप CT प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसे जो है एज ए एक्सरसाइज आप जो है बना के देख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम और देखते हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। So the provided key information is एडमिरल। जहाँ तक मैंने कल आप लोगों को इसको बताया था, फिर से एक बार आप बना के देख लीजिए। और जो गिवन CT है, तो इट्स नथिंग बट एयरक्राफ्ट विल गो टू न्यू दिल्ली। तो अब पहला टास्क क्या है, रिस्पेक्टिव प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन का, मतलब एडमिरल का जो है की वैल्यू आप जो है जनरेट कर लीजिए, कॉलम से रिलेटेड डिटेल्स को आप जनरेट कर लीजिए, और उसके बाद जो है CT रीड कर लीजिए। तो बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन यू हैव टू कन्वर्ट योर PT टू CT। तो एडमिरल को जो है अगर हमें जो है बनाना है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आ गया 1, सेकंड जो है यहाँ पे एक ऑकरेंस है तो उसको हमको जो है राइट करना रहेगा 2, ठीक है। अब C नहीं है, D है 3, तो 1364725 1364725 जो है आपका सीक्वेंस हो गया। ये जो है मतलब आपके कॉलम के सीक्वेंस हो गए। अब इस कॉलम के सीक्वेंस को जो है सिंपली यहाँ पे आप राइट कर लीजिए, और प्लेन टेक्स्ट को यहाँ पे राइट कर लीजिए। प्लेन टेक्स्ट को राइट करके जो है CT को जो है कॉलम वाइज रीड कर लीजिए। तो सिंपल सा है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक रिपीटेड रो कॉलम साइफर का और हम एग्जांपल देखते हैं। तो वी आर हैविंग 2 की इंफॉर्मेशन, इसको कंप्लीट कर लेंगे आप लोग। कोई दिक्कत हो रही हो तो बताएं। विजिबिलिटी हम मान चल रहे हैं कि सबको है, कंटेंट जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है क्लियरली आपको जो है विजिबल है, हम आपको ऑडिबल हैं, हम आपको विजिबल हैं। इन केस कोई दिक्कत है तो हमें आप बताइए फिलहाल, अदरवाइज हम फर्दर प्रोसीड करें। कोई प्रॉब्लम है? ओके। So by using a repeated row column cipher, encrypt a PT to a CT on the basis of given information। तो यहाँ पे जो है given information है, K1 है आपका ब्लू कलर, K2 given है, it's nothing but a scooter, and
the PT information is the aircraft will take off early morning तो सिमिलर है प्रीवियस केस में जो है की इंफॉर्मेशन आपको जो है दिया हुआ था, सीक्वेंस नंबर दिया था, यहाँ पे जो है एक स्पेसिफिक आपको जो है अल्फाबेट दिए हुए हैं जिनको आपको जो है कन्वर्ट करना है एक नंबर में, और नंबर में जो है कन्वर्ट करने के बाद में पहले जो है K1 आप अप्लाई करेंगे, फिर K2 अप्लाई करेंगे, अगर जो है मतलब K2 अप्लाई करने के बाद जो भी आउटकम आता है उसे आप जो है फाइनल सीटी ट्रीट करेंगे, आप उसे काम करेंगे फाइनल रिजल्ट। तो ब्लू कलर का जो है अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट कीजिए, ए नहीं है, बी आपका आया फर्स्ट, सी यहाँ पे है, डी नहीं है, ई आ गया, तो जहाँ तक ये सीक्वेंस एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए 1483254667। स्कूटर का अगर आप जो है देखते हैं सीक्वेंस जो है तो उस केस में जो है मतलब आप ए देखिए नहीं है, बी नहीं है, सी है 1, तो इस तरह का सीक्वेंस आपका प्रिपेयर होगा। दोनों के कॉलम्स जो है डिफरेंट हैं, डिफरेंट कॉलम होने के बाद भी जो है मतलब आपका जो है प्रॉपर जो है रिजल्ट देगा, आपको जो है प्रॉपर सीटी मिलेगा। सीटी को आप जो है डिसाइफर करके जो है प्लेन टेक्स्ट में भी जो कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसे जो है आपको क्रॉस वेरीफाई करना रहेगा। और एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि जब आप स्पेसिफिक कंटेंट को जो है रो वाइज राइट करते हैं, जो भी गिवन कॉलम है उसके अकॉर्डिंग, तो कई बार होता है कि आपका जो है अल्फाबेट, प्लेन टेक्स्ट अल्फाबेट की वजह से यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया। एग्जॉस्ट होने के बाद में जो बचे हुए स्पेसेस हैं आप प्रयास कीजिए उसमें जो है क्रॉस मार्क कर दीजिए, या एज ए टर्मिनेटर सिंबल जो है Z जो है आपका मार्क कर दीजिए। कई लोग जो है J यूज करते हैं, कई लोग Z यूज करते हैं, कई जगह पे जो है क्रॉस X जो है यूज किया जाता है। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसे आप यूज कीजिए। सिर्फ आपको इंश्योर करना है कि रिस्पेक्टिव जो है फिलर अल्फाबेट का जो है लैंग्वेज रेगुलरिटी जो है कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मतलब हम पहला काम कर रहे हैं एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन के लिए जो है मतलब ये जो है आपका पीटी है, पीटी को पीट के एन्क्रिप्ट करने के लिए, एन्क्रिप्ट करने के लिए रो कॉलम साइफर यूज कर रहे हैं। रो कॉलम साइफर का जो है ब्लू कलर जो है हम K1 यूज कर रहे हैं एज ए की। सीटी जो है रिजल्ट हुआ इंटरमीडिएट, इस इंटरमीडिएट सीटी को फिर से जो है हमने दिया आपके रो कॉलम साइफर को एन्क्रिप्शन के लिए। यहाँ पे हम K2 यूज कर रहे हैं और ये फाइनल जो है आपका सीटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो सिंपल से एग्जाम्पल्स आते हैं, उसको जो आप एक बार बना के देख लीजिए, कहीं किसी को डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो बोर्ड विजिबल नहीं है, बोर्ड की विजिबिलिटी मिल रही मोबाइल में बात करती है। फॉर्म भर दीजिए। Just let me know whether the content written on board they are visible to all of you or not. बोर्ड पे लिखे हुआ कंटेंट आपको विजिबल है या नहीं? Yes, sir. विजिबल है। तो ये जो हमने अभी आपको K1 और K2 जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके बेसिस पे प्लेन टेक्स्ट को जो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए कहा है, आपको यूज करना है रिपीटेड रो कॉलम साइफर। तो फाइनल सीटी का वैल्यू आपने मुझे बताइए। सर यहाँ पे K1 में 2 बार 4 आया है तो उसको कैसे करेंगे? K1 में 2 बार ये गलत हमने लिख दिया है, पहले 4 रहेगा या 5 रहेगा?
ठीक है, फिर से सर 2 लेकिन बार नहीं अगर रहेगा, मतलब सर 2 ट्वाइस बार नहीं रहेगा बस। देखिए ये इतनी जो ये 2 बार अगर रहता है तो उस केस में जैसे मतलब एल का ऑकरेंस ट्वाइस है ना, तो फर्स्ट टाइम जो है एल आया वो 4 हुआ, नेक्स्ट टाइम जो भी एल आ रहा है वो 5 हुआ, फिर 6, फिर 7, इसको चेंज कर लीजिए और यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। अल्फाबेट जितने भी रहेंगे वो इंडिकेट करें कि उतने नंबर ऑफ आपके कॉलम्स हैं, ठीक है। अगर किसी अल्फाबेट का ऑकरेंस ट्वाइस हो रहा है तो फर्स्ट में जो भी अल्फाबेट आ रहा है, जैसे मान के लिए कि एडमिरल के केस में हम लोगों ने देखा ए का ऑकरेंस ट्वाइस हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम जो है ए आया उसको हमने वैल्यू दिया 1, नेक्स्ट टाइम जो भी मतलब ए आ रहा है उसको जो है सेकेंड हम ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए। जो आपका एल था ये ट्वाइस आया था, मैंने सेम वैल्यू दी थी, उसको जो है आप चेंज कर लीजिएगा। फर्स्ट आपका एल यहाँ पे आया उसको 4 दिए, सेकेंड टाइम जो है ऑकर हो रहा है उसको 5 दिए, ठीक है। तो इसको अपडेट करके आपका जो है रिस्पेक्टिव प्लेन टेक्स्ट को जो है पहले PT1 में कन्वर्ट कीजिए, देन इस कंसेंट PT1 को फिर से एनकोड कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड की स्कूटर, और एनकोड करके जो है फाइनल PT जो प्रोड्यूस कीजिए, रिजल्ट कीजिए। हो गया। जो इवन नंबर्स हैं, अभी इवन रोल नंबर्स जो हैं, जैसे मान चलते हैं हम लोग 10, 20, 30, 40 जितने भी हैं, मतलब आप लोग जो है अगर कहीं हैं अवेलेबल ऑनलाइन तो थोड़ा रिस्पॉन्स करेंगे। नंबर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, ये जितने भी रोल नंबर्स हैं इनको जो है हम एब्सेंट मार्क कर रहे हैं अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। यदि कोई लिसन कर रहा है तो हमें रिस्पॉन्स करेगा। ओके, किसी ने जो है कैलकुलेट किया, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में जो है कन्वर्ट किया, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो एक तो जो है आप जो भी स्लिटी है उसको आप राइट भी कर दीजिए चैट विंडो में, और साथ साथ जो है डिक्टेट भी कर दीजिए, बोल दीजिए, हम यहाँ बोर्ड पे लिख देते हैं। बाकी आपके जो भी कलीग हैं जो सो रहे हैं फिलहाल वो वेरीफाई कर लें जिससे। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि कुमार जी, जब भी आप या जब भी कोई स्टूडेंट इंटरेक्ट करेगा पहले अपना रोल नंबर और नेम हमको बोलेगा। तो बताइए रवि कुमार। FA FAOA। XAOA? नहीं सर, F। आप लिख दो यार, मतलब क्या है क्लैरिटी नहीं है ना, तो लिख लीजिए। बाकी जो आपके बैचमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, एक बार आप जो चैट विंडो है उस रिस्पेक्टिव चैट विंडो से जो वेरीफाई कर लीजिए, उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। तो अगर किसी को डिफिकल्टी हो यहाँ पे तो हमको अभी बता दें, सिंपल सी चीजें हैं। हम लोगों ने अभी तक जो है क्या देखा, जो साइफर्स हैं जिनको हमने कैटेगराइज किया था सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन, उसके हम लोगों ने जो है क्लासिकल एग्जांपल्स, बेसिक एग्जांपल्स देखे। तो सब्स्टिट्यूशन साइफर के केस में हमने जो है कैटेगराइजेशन किया था, सब्स्टिट्यूशन साइफर कैटेगराइज किया था मोनो अल्फाबेटिक, पॉली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर, ठीक है। तो मोनो अल्फाबेटिक का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा सीजर साइफर, पॉली अल्फाबेटिक का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा इस तरह से आपका जो है लेफेयर साइफर, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन के केस में हम एक स्पेसिफिक अल्फाबेट को, एक स्पेसिफिक जो है कैरेक्टर को किसी जो है दूसरे कैरेक्टर से जो है रिप्लेस करते हैं। अगर फिक्स सब्स्टिट्यूशन होता है, एक स्पेसिफिक अल्फाबेट का अगर ऑकरेंस होता है, उसे किसी फिक्स अल्फाबेट से सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उसे हम काम करते हैं मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर। If we are substituting the alphabet with a different alphabet,
then that respective cipher is termed or referred as a polyalphabetic cipher. Polyalphabetic cipher का एग्जाम्पल हम लोगों ने जो प्लेफेयर साइफर देखा, या हम लोगों ने जो है विग्नियर साइफर देखा, जो कि एक्सटेंशन है, एक तरह से आप काम करेंगे सीजर साइफर का. देन सेकेंड कैटेगरी इज योर ट्रांसपोजिशन साइफर. तो ट्रांसपोजिशन साइफर के केस में हम क्या करते हैं, जो आपका इनपुट होता है, जो आपका प्लेन टेक्स्ट होता है, उस प्लेन टेक्स्ट को जो हम ट्रांसपोज करते हैं, उसको जो है एक तरह से जो हम परम्यूट करते हैं, उनकी पोजीशंस को जो है शफल करते हैं, पोजीशंस को चेंज करते हैं. तो ट्रांसपोजिशनल साइफर के एग्जांपल में एक बेसिक एग्जांपल हमने देखा, इट्स नथिंग बट योर रेलेवेंस साइफर. तो रेलेवेंस साइफर के केस में कंटेंट को जो है हम फ्रेंच के ऊपर में जिगजैग फैशन में जो है राइट करते हैं, साइफर टेक्स्ट को जो है रो वाइज रीड कर लेते हैं. दूसरा जो हमने ट्रांसपोजिशन का एग्जांपल देखा, इट्स नथिंग बट योर रो कॉलम साइफर. रो कॉलम साइफर जो है आपका बेसिक साइफर है. सिंपली अभी हमने देखा, प्लेन टेक्स्ट को जो रो वाइज राइट करेंगे और साइफर टेक्स्ट को जो है कॉलम वाइज रीड कर लेंगे. इसी का एक्सटेंशन है आपका रिपीटेड रो कॉलम साइफर, जहाँ पे आप उसे ट्वाइस या थ्राइस यूज करते हैं. तो रिपीटेड रो कॉलम साइफर यूज करने का बेनिफिट ये है कि आपका जो साइफर टेक्स्ट है, रिपीटेड रो कॉलम साइफर से जो है क्वालिटी साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस होता है. उसे जो है एक तरह से डिकोड करना, उसे जो है पर्टिकुलरली स्क्रिप्ट एनालाइज करना जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा टिपिकल हो जाता है. ठीक है. तो एक टर्म हम आप और देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज स्टेगनोग्राफी. 2 नंबर के लिए पूछते हैं. So all of you are familiar with the steganography technique. There are a lot more tools available in market or on web for carrying out the steganography related task. तो steganography क्या होता है उसे हम देख लेते हैं. तो पहले हम लोगों ने जो है क्रिप्टोग्राफी को जो है टर्म किया. क्रिप्टोग्राफी इज नथिंग बट क्रिप्टो प्लस ग्राफी, इन द सेंस आर्ट और साइंस ऑफ सीक्रेट राइटिंग. ठीक है. यहाँ पे स्टेगनो को जो हम काम करेंगे, स्टेगा प्लस ग्राफी. तो ग्राफी आप जानते हैं, इट्स नथिंग बट योर राइटिंग, और स्टेगा का मतलब होता है हाइडिंग. स्टेगनोग्राफी को हम सिंपली टर्म कर सकते हैं कि इट्स नथिंग बट द आर्ट और साइंस ऑफ सीक्रेट हाइडिंग. तो यहाँ सिंपली जो भी आपका इंफॉर्मेशन होता है या डेटा होता है या कंटेंट है, जिसको सीक्रेसी के साथ में आपको डेस्टिनेशन को डिलीवर करना है, हैंड ओवर करना है, तो उस रिस्पेक्टिव डेटा या इंफॉर्मेशन को आप एक स्पेसिफिक जो है डिजिटल ऑब्जेक्ट, डिजिटल इमेज या हो सकता है MP3 फाइल, MP4 फाइल के अंदर जो है हाइड करते हैं. ठीक है. तो हाइड करते हैं इन द सेंस इसका जो है स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा. ये जो है आपका मान के लिए कि स्टेगनोग्राफी प्रोसेस है या स्टेगनोग्राफी एल्गोरिथम है. तो यहाँ पे हम आपको ये बेसिक एग्जांपल दे रहे हैं कि हियर आई एम प्रोवाइडिंग वन कवर इमेज. एक किसी पर्सन का जो है कवर इमेज है, इसको जो है हम काम कर रहे हैं, या इट्स नथिंग बट योर कवर इमेज. एक कवर इमेज हम इनपुट कर रहे हैं. दूसरा, इस रिस्पेक्टिव कवर इमेज के अंदर जो है हमें एक इंफॉर्मेशन को जो है एम्बेड करना है. इसे हम काम कर रहे हैं इंफॉर्मेशन और डेटा. तो एक कवर इमेज दे रहे हैं. तो कवर इमेज हो सकता है आपका JPG या पर्टिकुलरली BMP फाइल है. जरूरी नहीं कि JPG या BMP फाइल ही हो. आप जो है कोई जो है ऑडियो दे सकते हैं, कोई वीडियो दे सकते हैं. तो स्टेगनोग्राफी टेक्निक काफी एडवांस हो चुकी हैं कि जो है कवर इमेज दे रहे हैं, कवर फाइल दे रहे हैं, जिसके अंदर जो आप अपने इंफॉर्मेशन को एम्बेड करना चाहते हैं, कंटेंट को एम्बेड करना चाह रहे हैं. सेकंड जो है आपका एक्चुअल इंफॉर्मेशन, जिसे आप हाइड करके डेस्टिनेशन को जो है हैंड ओवर करना चाह रहे हैं. ये 2 इंफॉर्मेशन हुए. साथ साथ जो है इस रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन को जब यहाँ पे एनकोड करेंगे, तो एनकोड करने के दौरान जो है इसको एनक्रिप्ट भी कर दिया जाता है. तो एनक्रिप्ट करना है इन द सेंस यहाँ पे तीसरा हम यहाँ इंफॉर्मेशन देंगे, इट्स नथिंग बट योर की वैल्यू. तो काम क्या होगा, ये जो आपका स्टेगो एल्गोरिथम है, तो स्टेगो एल्गोरिथम क्या, पहला जो है कवर इमेज लेगा, दूसरा जो है इंफॉर्मेशन लेगा. तो इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं I से, कवर इमेज को इंडिकेट कर रहे हैं P से, और की इंफॉर्मेशन को जो हम के काम कर रहे हैं. तो स्टेगो एल्गोरिथम आपके जो है कवर इमेज प्लस जो है इंफॉर्मेशन
साथ में की वैल्यू, तीनों को जो है यूटिलाइज करके आपके कंटेंट को जो है पहले यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है की का यूज करके जो स्क्रैम्बल किया जाएगा। स्क्रैम्बलिंग का जो भी आउटकम आएगा, जो सीटी आएगा, उस रिस्पेक्टिव सीटी को जो है इस इमेज में, इस रिस्पेक्टिव जो है डिजिटल ऑब्जेक्ट में जो है एम्बेड किया जाएगा। ठीक है, तो एम्बेड करने के लिए जो है कई सारी जो है मेथड्स होती हैं, कई सारी टेक्निक्स होती हैं। एक बेसिक मेथड मैं आपको जो है बताता हूँ। ये क्लियर है कि आपको, मतलब इनपुट में आप जो है एक इंफॉर्मेशन या डेटा दे रहे हैं जिसको आप हाइड करके डेस्टिनेशन को जो है डिलीवर करना चाह रहे हैं, हैंड ओवर करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे कवर इमेज ले रहे हैं। अब इस कवर इमेज में आप अपने इंफॉर्मेशन या डेटा को एनक्रिप्ट करके, एनकोड करके जो है प्लेस करेंगे और ये आपको आउटपुट रिजल्ट करेगा। तो आउटपुट में जो है आपका जो है एक स्टेगो इमेज आएगा। ठीक है, स्टेगो इमेज है। यूजर को जो है लगेगा कि नॉर्मल आपका एक इमेज है, नॉर्मल आपका जो है इंफॉर्मेशन है, बट इन रियलिटी जो है इस रिस्पेक्टिव इमेज में आपका जो है ये इंफॉर्मेशन या कंटेंट जो है एनकोडेड रहेगा, एम्बेडेड रहेगा। इवन आपके इमेज के साइज में भी कोई वेरिएशन नहीं होगा। इमेज का जैसे साइज यहाँ पे जो है 8K का है या 10K का है, तो सेम साइज का जो आपका इमेज यहाँ पे रिजल्ट होगा। इस प्रोसेस को कैरी करने के लिए एग्जैक्टली किया क्या जाता है उसे मैं आपको ब्रीफ में जो है बता दे रहा हूँ। ये आप अपने लेवल पे जो है इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा, क्योंकि ये डिटेल में जो है का पार्ट नहीं है। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है कि भाई स्टेगनोग्राफी क्या है। तो स्टेगनोग्राफी इज नथिंग बट द आर्ट और साइंस ऑफ सीक्रेट हाइडिंग, वेयर वी आर हाइडिंग और इंफॉर्मेशन इनसाइड सम डिजिटल ऑब्जेक्ट। तो डिजिटल ऑब्जेक्ट आपका हो सकता है इमेज है, हो सकता है MP3 फाइल है, MP4 फाइल है या कोई और फाइल है। इवन आप जो है PDF इंफॉर्मेशन, वर्ड इंफॉर्मेशन या बाकी सब जो है डॉक्यूमेंट्स को इसके अंदर जो है एम्बेड कर सकते हैं। तो जैसे जो आपका इमेज है, तो इस रिस्पेक्टिव इमेज को क्या है पिक्सल बाय पिक्सल रीड किया जाता है। तो आप जो इमेज रीड करते हैं तो जो है 24 बिट रहता है, मतलब एक स्पेसिफिक पिक्सल का जो है रिप्रेजेंटेशन जो है 24 बिट से होता है। तो यहाँ जो है 8 बिट बाइनरी इंफॉर्मेशन है। फिर यहाँ पे फर्दर जो है इस तरह का जो है इंफॉर्मेशन है, फिर ऐसा जो है इंफॉर्मेशन है। तो इमेज को जो है पिक्सल बाय पिक्सल जो है रीड किया जाएगा। इस तरह का जो है मतलब एक पिक्सल को जो है इमेज के जो है रीड किया जाएगा, जो कि 24 बिट का रहेगा। फर्दर जो है क्या काम होगा कि जो आपका इंफॉर्मेशन है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन जिसको आपको हाइड करना है, तो उस इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे। इंफॉर्मेशन को रीड करने के बाद उसे एनक्रिप्ट करेंगे। एनक्रिप्ट करने के बाद जो सीटी आएगा उस रिस्पेक्टिव सीटी को जो है बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इस कंसेंट जो है बाइनरी वैल्यू को आइदर जो है LSB या पर्टिकुलर MSB से जो सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी, यहाँ पे या यहाँ पे। हर स्पेसिफिक पिक्सल, मतलब एक इमेज में जो है लैक्स ऑफ पिक्सल्स रहते हैं। ठीक है, लैक्स ऑफ क्रोर्स ऑफ पिक्सल्स रहते हैं एक इमेज में। तो उन रिस्पेक्टिव पिक्सल के LSB या MSB वैल्यूज को जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर बाइनरी इंफॉर्मेशन दैट यू आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द CT। तो CT का जो बाइनरी इक्विवेलेंट रहेगा, उस बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यूज को जो है हर पिक्सल के जो है आपके LSB या MSB से सब्स्टिट्यूट करेंगे। LSB सब्स्टिट्यूशन आप करें तो LSB सब्स्टिट्यूशन कर दें। तो जनरली होता यह है, जैसे मान चलिए कि यहाँ पे जो है हमारे पर्टिकुलर बाइनरी वैल्यू आया 0 1 0 1, इसको हमें जो है सब्स्टिट्यूट करना है। LSB हम देख रहे हैं तो देखिए भैया 0 है, ठीक है, यहाँ 1 है तो 0 करना है तो इसको जो है 0 कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आ रही 1, देख रहे हैं 1 है, उसको जो है एज इट इज रहने दीजिए। 0 है, यहाँ पे 1 है तो उसको 0 कर दिए। तो माइन्यूट जो चेंजेस होते हैं एक स्पेसिफिक पिक्सल के अंदर में, जिसकी वजह से आपका जो इंफॉर्मेशन भी वहाँ एनकोड हो जाता है, आपके जो है इमेज का साइज भी जो है इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है, आपका इमेज जो है एज इट इज रहता है। ठीक है, तो ओवरऑल स्टेगनोग्राफी जो है एक आर्ट है, एक पर्टिकुलर साइंस है, जिसका यूज करके आप अपने इंफॉर्मेशन को जो है एक डिजिटल ऑब्जेक्ट के अंदर में हाइड करते हैं और एक स्टेगो इमेज प्रिपेयर करते हैं। तो स्टेगो इमेज आप जो है डेस्टिनेशन यूजर को जो फॉरवर्ड करते हैं। डेस्टिनेशन यूजर को अगर मालूम है कि ये स्टेगो इमेज है तो वो एप्रोप्रिएट टूल जो है यूटिलाइज करेगा
और उस कंसेंट टूल का यूटिलाइजेशन करके स्टेगो इमेज से आपके इंफॉर्मेशन को डेस्टिनेशन एंड पे जो है एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो गूगल में आप सर्च करेंगे स्टेगनोग्राफिक टूल्स नाम से, you'll get n number of tools available on web related to steganography, जिसमें से कुछ पॉपुलर जो टूल्स हैं स्टेगो है, स्टेगा हाइड है, लुक एंड हाइड है, तो बहुत सारे जो है टूल्स अवेलेबल हैं। उन टूल्स का यूटिलाइजेशन करके आप अपने जो इंफॉर्मेशन है उनको जो है किसी कैरियर ऑब्जेक्ट के अंदर में जो है हाइड कर सकते हैं। इनकेस जो है एग्जाम में 2 नंबर के लिए 4 नंबर के लिए कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेगनोग्राफी क्या है, तो उसे आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है जो अगला टॉपिक है ब्लॉक साइफर, तो ब्लॉक साइफर डिजाइन प्रिंसिपल्स वगैरह क्या हैं तो उनको हम देखेंगे, और बेसिक ऑफ मॉडर्न ब्लॉक साइफर, इन पॉइंट्स को जो हम कवर करेंगे। तो किसी को कोई जो है डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो हमसे भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ स्टॉप करते हैं। Okay, thank you very much.